रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। یہ وہ شخصیت تھی جن سے شکارپور کا ہر شخص ملنے کی خواہش رکھتا تھا، ایک شفیق بزرگ اور ایک مثالی باپ جس کی زندگی میں بھی ان کے چرچے تھے اور ان کے جانے کے بعد بھی لوگ ان کے گن گاتے ہیں۔ ایک دہشت گردی کے نتیجے میں جہاں بہت سے گھر اجڑے، وہاں پیر حاجن شاہ کا گھرانہ بھی اداس اور سوگوار ہو گیا۔ حقیقتاً پورے شکارپور کو پیر حاجن شاہ شہید سے ایک انسیت اور محبت تھی، لیکن محبت اور شفقت کے اس چراغ کو دہشت گردوں نے دہشت گردی کے ایک ایسے طوفان میں رکھ دیا جس سے اندھیروں اور خوف کے سائے نے جنم لیا۔ جیکو بھی ہوندو ہوتے اساں جے تباہ بکھ تے آیا ان کے مانی پان کھڑی انہوں کے پان دیندو۔ جو بھی اس طرف آتا اگر وہ بھوکا ہوتا تو بابا سائیں خود اپنے ہاتھوں سے ان کو کھانا کھلاتے، چاہے وہ کوئی ان کا مرید ہی کیوں نہ ہو۔ آج کل کوئی کسی کو نہیں پوچھتا، یہاں تک کہ آپ کسی کو کھانس کر بھی اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتے۔ سائیں کے پاس لوگ آتے اور کہتے سائیں ہمارے لیے دعا کرو کہ ہمارا کام ہو جائے۔ سائیں دعا کرتے تو ان کی امیدیں بار آتی۔ دشمن تو سائیں کے بنگلے پر بھی پہنچے تھے، چھت گر گئی تھی، اللہ کا حکم تھا کہ سائیں کو خراش تک نہیں آئی۔ پھر دشمنوں نے مزار پر دھماکہ کیا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ ہر لمحہ ہر گھڑی بابا سائیں کی یاد آتی ہے۔ کوئی وقت ایسا نہیں کہ ہم اپنے والد صاحب کو یاد نہ کرتے ہوں۔ ہم جیسا کہتے تھے وہ ویسا ہی کہتے تھے، کبھی ہمیں نا امید نہیں کیا۔ کوئی کام ہوتا تو کسی مرید کو آواز دیتے، بس ان کا آواز دینا ہی کافی ہوتا۔ سحری کے وقت ایک گلاس دودھ کا پی کر روزہ رکھتے اور قرآنی آیات کا ورد کرتے۔ دن کو اکثر فقراء سے ان کی بیٹھک ہوتی اور مزار کی بھی دیکھ بھال کرتے، لوگوں کی خدمت کرتے، مگر کبھی اپنے جسم کو آرام دینے کی غرض سے اپنی خدمت نہیں کی۔ خدمت ہے مانن جی خدمت ہے، پانچی خدمت کان کئی سائیں، ہاں پانچے جسم جی سائیں پان نہ کئی۔ کبھی بچپن سے لے کر جوانی تک کبھی انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، ڈانٹا بھی نہیں۔ اکثر بس کہا کرتے کہ اپنے بارے میں کہ لوگوں سے اچھا بہیو کرو، کسی کو کچھ مت کہو، کوئی آپ کا کہنا غلط نہ سمجھے کہ آپ کہیں اور وہ آپ کا برا مانے۔ ایسا کہ آج تک کوئی باپ ایسا نہیں ہوگا میرے خیال سے، کیونکہ ہم نے بچپن سے اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھا تھا، سائیں سمجھا تھا۔ تابش علم و ہنر بے سود ہے، کاوش حسن عمل بے سود ہے۔ امن کیفی ہو نہیں سکتا کبھی جب تلک ظلم و ستم موجود ہے۔ ایسا قدرتی لدھوی علم تھا بابا کے پاس، قدرتی جیسے ہوتا ہے نا، بابا جیسے بابا بولتا ہے ہم نے تو قلم بھی نہیں اٹھائی، پڑھا بھی نہیں ایسا ظاہری میں، تو بابا کبھی کبھار تو بابا ایسے شہنشاہ لطیف کے بیت پڑھتے تھے نا جو ہم لوگوں کو کبھی سنے بھی نہیں۔ قدرتی علم تھا بابا کے پاس، جس بات پہ بھی چل جاوے تو بابا کے پاس علم تھا، ایک ایک چیز بابا کی متاثر کرتی، ایک ایک چیز بابا کا لہجہ ہوئے، صورت ہوئے، سیرت ہوئے، بابا کا دیکھ بھال ہوئے،
चलना जो भी आवे उसके साथ मकसद है। तो बाबा की हर एक बात जो है, तब बस दहशतगर्द तो बाबा इन्हों को तो कोई अपना कोई होगा ऐसा जिसके लिए ये नहीं सोचते हैं। तो ये दरगाह है या बुजुर्ग है या बच्चे हैं या औरत हैं, उनकी ये नहीं है उस सोच में। तो क्या उनको अपना चलाना है, काम करना है, वो करते हैं। पता नहीं वो कौन कराता है, खुदा उन्हों को गर्क करेगा। बाकी ये कोई तो हाथ है ना इन्हों के पीछे। बाकी दुश्मनी का मिसाल ही पैदा नहीं होता बाबा के साथ कोई दुश्मन होवे। बाकी किसी ख्याल का दुश्मन होवे वो खुदा जानता है। बाकी बाबा के साथ तो किसी का भी कोई दुश्मन नहीं हो सकता है। बाबा के लाल हैं, यही हमारा लोगों का सहारा है। देख के बाबा को समझते हैं हमारे बाबे ये बेटे हैं। 25 फरवरी सन 2013 की वो रात जो शिकारपुर के लोगों पर गुजरी इंतहाई अजियतनाक थी। और उससे बड़ी और बुरी खबर ये कि गद्दी नशीन दरगाह गुलाम शाह माड़ी वाले पीर हाजन शाह अब दुआ देने को बाकी नहीं रहे। पच्चीस फरवरी सन 2013 की वो रात कौन भूल सकता है, जब शिकारपुर से 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई मशहूर दरगाह गाजी गुलाम शाह माड़ी वाले पर दहशतगर्दों ने बम से हमला किया। पच्चीस फरवरी सन 2013 बरोज पीर वक्त शाम 6:50 जब सिंध के जिला शिकारपुर के एक नवाही गांव माड़ी पाक में दरगाह गुलाम गाजी शाह में रिमोट कंट्रोल धमाका किया गया, जिससे दरगाह के गद्दी नशीन पीर हाजन शाह समेत 4 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हुए। जख्मियों को जैकबाबाद सिविल अस्पताल शिकारपुर लाड़काना मुंतकिल किया गया। इस धमाके में 1 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक आदमी दरगाह के अंदर दाखिल होकर गद्दी नशीन पीर हाजन शाह के करीब आ बैठा और थोड़ी देर में अपना एक थैला वहां छोड़कर फोन सुनने के बहाने बाहर चला गया, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद दरगाह में भगदड़ मच गई। धमाके के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे शुरू हो गए। पीर हाजन शाह के अकीदतमंदों ने धाड़े मार के रोना शुरू कर दिया। 4 दिन जिंदगी और मौत की कशमकश में रहने के बाद गद्दी नशीन पीर हाजन शाह इस दारे फानी से रुखसत हुए। दुनिया जहान के लिए दुआए खैर करने वाले पीर हाजन शाह साहिब एक दहशतगर्दी का शिकार हो गए, जिसके गम में पूरा शिकारपुर सोगवार हो गया। क्या किया था इन्होंने, ये तो कभी भी किसी को दुआ ही देते हैं, हर वक्त दुआ देते थे, कभी भी किसी को कुछ भी नहीं कहा। हमेशा यहाँ से लोग लेकर जाते हैं, देखे कभी भी नहीं। फिर भी यहाँ देखो जालिमों ने नहीं छोड़ा। हर तरफ मायूसी थी, पूरा ये जला हुआ था, सब सुराख हो गए थे, दीवारों पे छत गिर गई थी, बहुत नुकसान हुआ है यहाँ। उनको इस दुनिया में भी आराम नहीं मिलेगा, वहाँ भी आराम नहीं मिलेगा। वो हमेशा दर बदर रहेंगे इस तरीके से जो करके जाएंगे। मासूमों के घरों पर आकर, उनकी दरगाहों पे आके इस तरीके से करेंगे तो वो कभी भी सुखी नहीं रहेंगे। जमर समझते हैं आप, इसे नाचते हैं, इसे जमर करते हैं। बाबा गुस्सा गुस्सा भी यही बोला उसको, जमर, वो भी लफ्ज खुशी का है। 2 आदमी आए, एक में आते बैग था ब्लैक कलर, वो वहाँ रख दिया, रख कर फिर फोन के बहाने वो बाहर चला गया। दो 2512 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला शिकारपुर सिंध का तारीखी शहर है। इस शहर के लोग पुरअमन, मेहमान नवाज और बेइंतहा मोहब्बत करने वाले हैं। कहा जाता है कि माजी में शिकारपुर ईरान और वस्त एशिया से बजरिया कंधार हिंदुस्तान जाने वाले काफिलों के लिए एक अहम पड़ाव की हैसियत रखता था। ताहम बरतानवी राज में सखर की अहमियत बढ़ जाने के बाद शिकारपुर मिठाइयों और अचारों की शोहरत तक महदूद हो गया।
साईं का जो है तो तरीका है बहुत अच्छा था। हमारे साथ भी दूसरे बंदों के साथ भी एक ही जैसा था सलूक। वो मोहब्बत देते थे सबको। हम तो उसके बेटे थे ना, हमारे अलावा सबको एक ही जैसे मोहब्बत देते थे, फ़र्क नहीं रखते थे बेटों में। अभी तो हमारा सारी चीज़ चली गई ना, अभी तो साईं की चला गया तो हमारी सारी चीज़ें चली गई। उसका प्यार बहुत याद आता है, जो हमारे साथ कचहरी करता था ना, हमारे साथ बैठता था, वो बहुत याद आती है। ये तो बहुत नाइंसाफ़ी हुई है हमारे साथ। हमारे साथ कोई किसी के ताल्लुकात में नहीं है, हमारा किसी फ़िरके से वास्ता नहीं है, किसी को हम कुछ कहते भी नहीं है। हमारा सारों से मोहब्बत का सिलसिला है ना, वही है। किसी जमात से नहीं है हमारा ताल्लुकात कि किसी को हम भरा बुला कहें या हम तकरीरें करें, कुछ भी नहीं है हमारा। ये तो दरगाह दुआ के लिए दरगाह होती है, ये किसी के फसाद के लिए तो नहीं है ना, ये सियासत का तो नहीं है चक्कर। ये तो दुआ का है ना। दरगाह मस्जिद में जाए वो भी खुदा की इबादत के लिए जाता है ना, दरगाह पे जाता है वो भी खुदा की इबादत है ना, वो किसी और की तो नहीं है, खुदा की इबादत है ना। वहाँ भी दुआ मांगते हैं, क्या बोलते हैं, खुदा को अर्ज़ करते हैं ना। वो कहते हैं कि ये पीर देते हैं, फैज़ जो है ना पीर देते हैं, लेकिन हम तो हाथ उठा रहे हैं। ये हाथ किसके बारगाह में उठ रहे हैं? ये तो अल्लाह के बारगाह में उठ रहे हैं, उसको वास्ता दे रहे हैं। उनकी थोड़ी भूल है, सामने ही बैठे थे, आप जहाँ से बाहर से गुज़र के आए, उस पुल से बाहर थे, हमारे बंगले से धुआं निकला, हमने समझा कि रोज़े में बम फटा है। आए तो फ़ोन घुमाई, क्या हुआ है? फ़ोन हमारे भाई ने नहीं उठाई, हम समझ गए कुछ हमारे दरगाह पे हुआ है। हमने जल्दी में पहुंच गए तो उस वक्त तो सब लोगों ने ये बताया कि सिलेंडर फटा है, अंदर सिलेंडर वो फटा है, बम की कैफियत नहीं थी। जब बम में अंदर जो लोग थे वो होश में आए, उन्होंने बताया कि बम फटा, जैसे हमें कमी हुई है साईं की, वैसे लोगों को भी होगी। आखिर ये कौन लोग हैं जो मुक़द्दस मकामात और औलिया कराम के मज़ारात को दहशतगर्दी का निशाना बनाते हैं? सूफी गाजी गुलाम शाह अंदरूनी सिंध का पहला मज़ार है जिसको निशाना बनाया गया। इब्तदाई रिपोर्ट में गद्दी नशीन पीर हाजन शाह के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई और तकरीबन 4 दिन बाद आप इस जहान फानी से रुखसत हो गए। बाबा इते हुयो शाम जे पार बस कुदरत उनके उस दिन बाबा इधर आए, फिर शाम के वक्त वो अपनी मसनद पर तशरीफ लाए, लेकिन धमाका हो गया, जालिमों ने उसे मार डाला। वो बहुत रहम दिल थे, सबकी खिदमत करते थे। उनके मज़ार की तरफ जो कोई भी आता वो बामुराद होता। वो सबको बराबर की नज़र से देखते थे, चाहे वो कोई अमीर होता या कोई गरीब। बुखिया ड्रायर को कुरारो अदलो गदलो सब न चला एक जड़ा होया। सज्जादा नशीन पीर हाजन शाह माड़ी वाले की शख्सियत हर एक के लिए सहरंगेज थी। वो मोहब्बत और खुलूस का पैकर थे और कहा जाता था कि वो किसी भी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। कोई भी नुकसान भी हो जाता है फकीरों से वगैरह, किसी को ऐसा भी न बोला ख्याल तो करो, ऐसा भी बाबा ने किसी को कभी नहीं बोला तो ख्याल तो करो। हम लोग सोचते थे इसी दिन ये नुकसान किया है, हम लोगों को होती थी ख्याल में, पर बोल हम भी नहीं सकते थे। बाबा के आगे किसी को मजाल नहीं है जो कोई बोल भी सके। दबदबा भी बाबा का बहुत था और मोहब्बत भी बहुत थी। गुस्से में भी बाबा बोलता था झुमर समझते हैं आप, इसे नाचते हैं इसे झुमर करते हैं। बाबा गुस्सा भी यही बोला उसको झुमर, वो भी लफ्ज खुशी का है। मकसद है गुस्सा यही समझ लो कि गुस्सा बाबा को यही गुस्सा है तो झुमर बोलेगा उसको। बाबा किसी को अड़े भी नहीं बोला गुस्से में। हमारे से तो बाबा बस ऐसे जैसे जान चली गई है बाबा, बस ये बोता चल रहा है, बाकी हर चीज़ हम लोगों से निकल गई है बाबा। खुदा की तरफ देखते हैं तो ये वलियों के पास भी यही रास्ता है। सदा
साईं दरगाह पर बैठे हुए थे, लोग भी बैठे हुए थे साईं के पास दुआ मांगने के लिए। दो आदमी आए, एक में हाथ बैग था ब्लैक कलर का, वो वहाँ रख दिया, रख कर फिर फ़ोन के बहाने वो बाहर चला गया। फिर धमाका हुआ, हमने साईं से पूछा था वहाँ के, आप उनको जानते हैं? साईं ने कहा मैं उनको नहीं जानता, क्योंकि अंधेरा था, यहाँ पर लाइट बहुत जाती है। जब से हमारी उम्र के थे हमारे बाबा साईं, तब से लेकर आज तक उन पर हासे हुआ करते थे, उन पर हमेशा इम्तिहान नहीं हो रहा था। हमें बहुत दुख भी है इस बात का, इतना कि शायद क्योंकि हमारे जो है सबकी कमज़ोरी सिर्फ बाबा ही था। दुश्मनों ने वार भी हमारे बाबा के ऊपर ही कर दिया। बाबा हमेशा हमारे साथ ही रहे ताकि उनकी जो याद है हमारे दिल में वो कभी ख़त्म ना हो, किसी भी पल, किसी भी घड़ी, किसी भी दिन ख़त्म ना हो। अपने गली महल्लों और कस्बों को दहशतगर्दी से पाक करने का क्या तरीक़ेकार होना चाहिए? आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जिन्होंने हमारे पैर ही नहीं हमारे जहनों पर भी बेड़ियां डाली हैं, जिनकी वजह से हम सोचने और समझने से कासिर हैं कि एक इस्लामी फलाही रियासत में ये सब क्यों हो रहा है और कौन सी कुव्वतें कारफरमा हैं।